Welcome to once again. I'm your Jad Person. We extremely welcome you all of you. This is your English Foundation channel. Today we are going to discuss about the report writing. How to write a report writing in the board examination of CBSE. So that things we are going to discuss today. एक्चुअल में हम CBSE में बोर्ड एग्जाम में रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखें उसमें क्वेश्चन आता है कि यू आर अ रिपोर्टर एंड योर नेम इज दिस दैट एंड यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट राइटिंग ओके। तो उस रिपोर्ट राइटिंग को आप लिखते कैसे हैं उस चीज को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग, हाउ टू राइट अ रिपोर्ट राइटिंग इन अ करेक्ट वे इन द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ CBSE। ओके, सो गिव हेडिंग ऑन योर कॉपी रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग, यह रिपोर्ट राइटिंग हम लिखते कैसे हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है और कौन से तरीके से इसको लिखा जाता है, एक सिस्टमैटिक वे में हम इसको समझेंगे। ओके, रिपोर्ट राइटिंग जो है ये ज़्यादातर किसी इवेंट, किसी फंक्शन या किसी इंसिडेंट को शो करने के लिए जिसमें एक रीजन हो, करेक्ट रीजन क्या होना चाहिए, उसमें एक रीजन ये होता है कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, इन सभी चीज़ों का एक रीजन उसमें कंटेंट में होना चाहिए। 2 से 3 पैराग्राफ में वे सभी को मिलाकर हम लिखे जाते हैं रिपोर्ट राइटिंग। ओके, तो रिपोर्ट राइटिंग में ये सारे चीज मेंशन होते हैं। ज़्यादातर आप कोशिश करें कि ये सिंपल पास्ट टेंस का यूज करके रिपोर्ट राइटिंग लिखे जाते हैं, क्योंकि जो घटना घट गई होती है उसी को इसमें बताना रहता है रिपोर्ट राइटिंग में। ओके, इसमें अलग अलग टॉपिक पर लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मेट। So what is report writing and what is the format of the report writing? How to write a report writing? So first thing we will have to write the title or heading, we can say title or heading, both are same. So title or writing, you have to write first a title or heading, then next by reporter XYZ. Suppose by Raj Jadwar. So you have to write and it is given in the question, so find out the question and try to understand the sense of the question, then write by reporter. Okay, by reporter it means suppose this is the given in question, okay, XYZ. Next you have to write the place and date. Clear? After this you have to write content. Content is what, where, how, why, all the reasons you have to include here. Okay, next you have to write exact conclusion also. Conclusion means grammar or you have to write conclusion. This is grammar and vocabulary. So these are the things you have to mention for writing report writing. Okay. Next, when we talk about the marking scheme of the report writing, then you will get to see marking scheme of report writing. Marking scheme. What is the marking scheme? So first you have to write title. Title by place and date. इन तीनों चीज में आपको मिलते हैं 1 mark. You will get 1 mark of this 3. Then you have to write here content. In the content you have to describe here of why, the reason of why, how, when, what. All the reasons you have to include or describe here in the content.
Okay, you will get 2 marks in the content. And if you are going to write the content, then you have to care about this all, that it must be 2 to 3 paragraph. Then grammar and vocabulary. Grammar and vocabulary, including this all, you will get total 5 marks. It means report writing counts of total 5 marks in the CBSE board examination. Clear? If you write this all, or if you complete this all, then you will get total 5 marks in a correct way. And listen, word limits. When we talk about the word limits, then you will have to write total 120 words. This is the minimum according to the guidelines of the CBSE. Okay, so you have to write total 120 words, 120 words. Then you will get total 5 marks. सपोज क्वेश्चन आता है कि आप एक रिपोर्ट राइटिंग लिखिए जिसमें आपका नाम राज जाटवर है और आपका प्लेस ये है, आप इस डेट में आपके स्कूल जीएडी पब्लिक स्कूल में 24 जुलाई को एनुअल स्पोर्ट डे का कार्यक्रम रखा गया था। ठीक है, तो एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया गया, उस टॉपिक पर, उस हेडिंग पर आपको क्या करना है, रिपोर्ट लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, आपको लिखना है, फर्स्ट में लिखना है आपको टाइटल। टाइटल क्या रहेगा, एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड। क्यों, क्योंकि दिस इज द टाइटल, बिकॉज दिस इज द टाइटल, एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया गया। ओके, बाय राज जाटवर। मैं कौन हूँ यहाँ पर, आई एम रिपोर्टर। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया होगा कि यू आर रिपोर्टर एंड योर नेम इज राज जाटवर एंड यू आर फ्रॉम जीएलडी पब्लिक स्कूल खड़ताल। ओके, तो प्लेस यहाँ पर दिया गया है, मान लीजिए खड़ताल। मान लीजिए प्लेस दिया गया है खड़ताल। खड़ताल के बाद में मुझे डेट भी लिखना रहेगा। डेट लिखूंगा जैसे मैं आज का, सॉरी, जुलाई 2026 लाइक दिस। ठीक है, इतने कंप्लीट हो जाने के बाद में मेरा असली कंटेंट अब शुरू होने वाला है। असली कंटेंट का मतलब है मेरा, उसमें प्लेस दिया रहेगा जीएलडी पब्लिक स्कूल, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जीएलडी पब्लिक स्कूल celebrated its annual sports day on 24 July 2026. The program began with the welcome of chief guest next students participated actively in races, long jump and other स्पोर्ट्स। इस तरह की सभी चीज़ों को आपको मेंशन करना पड़ेगा कि स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ था
उस दिन सबसे पहले देखिए जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल सेलिब्रेट कर रहा था अपना एनुअल स्पोर्ट डे कब 24 जुलाई 2026 को। और ये प्रोग्राम कैसे शुरुआत हुआ, इस प्रोग्राम का शुरुआत हुआ बिगिन हुआ चीफ गेस्ट के वेलकम के साथ में। उसके बाद में स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट किए थे कई सारे गेम में, जैसे लॉन्ग जंप है, यहाँ रेसेस है और कई सारे स्पोर्ट्स हैं, अदर गेम है, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ होगा, इसके बाद में जो चीफ गेस्ट हैं इनको स्पीच के लिए इनवाइट किया गया होगा। उस चीफ गेस्ट ने स्पीच दिया होगा डिसिप्लिन के बारे में, स्कूल के फंक्शन के बारे में, कुछ तारीफ किए गए होंगे। वे सारी चीज़ शुरू से लेकर अंत तक आपको डिस्क्राइब करना रहेगा कि वहाँ पर क्या हुआ और क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिपोर्ट राइटिंग। ओके, इसी को ही कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। उसका एक ब्यौरा तैयार करना और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देना। यह ज़्यादातर जो है आप इसको सिंपल पास्ट टेंस का यूज करके लिख सकते हैं। यू कैन यूज सिंपल पास्ट टेंस एंड बाय यूजिंग दिस टेंस यू कैन राइट दिस रिपोर्ट राइटिंग। ओके, so I hope you will understood all the concept, all the format of the report writing, how to write a report writing in the